Good morning class. I hope you all are well. This is our revision class for class 10th. Okay, today we will study about the topic real numbers. So first of all, if you want to know about real numbers, तो हमें हर एक नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. लाइक हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज अवर नेचुरल नंबर. क्लियर? सो नेचुरल नंबर्स आर दोस नंबर्स. Natural numbers are those numbers. These are the counting numbers also. Clear? These are the counting numbers. Clear? So natural numbers started from 1, 2, 3 up to infinity. Is this clear? Now, second one is our whole numbers. What are whole numbers? All counting numbers together with zero form the set of whole numbers. क्या बोला इन्होंने कि together with zero काउंटिंग नंबर्स. दैट मीन्स अगर हम काउंटिंग नंबर्स के साथ में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो वो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं. लाइक 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी. दीज ऑल आर होल नंबर. नाउ थर्ड वन इज इंटीजर. व्हाट इज इंटीजर? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो एंड द नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इन्होंने क्या बोला है, हम एक कंक्लूड फॉर्म में बताते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? जीरो, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स. लाइक दीज आर द इंटीजर्स. जीरो इज देयर, दीज ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स एंड दीज आर नेगेटिव नंबर्स. इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज इंटीजर. इंटीजर इज डन. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज व्हाट? Fractions are the numbers of the form a by b. A by b form numbers are fraction form where a and b are natural numbers. Fraction में जो a और b होते हैं वो आपके क्या होते हैं? Natural numbers होते हैं. Like 2 by 3. 2 is natural number. 3 is also natural number. Clear? Now the next topic is what? Let me clear one thing. There is a by b form, but a is whole number, okay, and b is natural number. Why it is whole number? Because we can write it as 0 by 1 form. 0 is also a fraction form, na? We can write it as 0 by 1, 0 by 2. Yes, these are fraction form. Okay, now the next topic is our rational numbers. Clear? As you all know about this, rational number can be written as p by q form. Clear? Rational number can be written as p by q form where p and q are integers. इंटीजर्स क्या थे? जो आपकी पॉजिटिव फॉर्म भी थी, जो नेगेटिव फॉर्म भी थी और जो जीरो फॉर्म भी थी. But there is one condition that q is not equals to 0. Clear? These are called rational number. This is the condition. Q is for rational numbers. This is by q form. P belongs to Z. That means P and Q all are integers. And one condition is q is not equals to 0. Is this clear? Now there is a diagram for all the numbers. See, these are the counting numbers. Counting numbers are, these are the counting numbers. Counting numbers means 1, 2, 3 means natural numbers. Now next one is whole numbers. 0, 1, 2, 3. अब whole numbers में आपके natural numbers होते हैं. That's why ये इसके अंदर belong कर रहा है आपका. Next one is integer. What about integers? Integers are 0, all positive numbers and all negative numbers. That means जो whole numbers है वो आपके integers में contain करते हैं. Now next one is rational number. Rational number is p by q form where q is not equals to 0. अब देखो सारे के सारे इंटीजर्स को आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो. As you know कि हम 0 को भी 0 by 1 फॉर्म में लिख सकते हैं. 1 can be written as 1 by 1 form. 2 also can be written as 2
by 1 form. Same about negative numbers. So this is rational number. Clear? Yes. Our next topic is fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem? Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. पहले बच्चों ये देखो कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं. फर्स्ट वन है कंपोजिट नंबर. क्लियर? सेकंड वन इज प्राइम्स एंड नेक्स्ट वन इज प्राइम फैक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर composite numbers are those numbers having more than two factors. There is a word factor. First of all तो हम इसे डिफाइन करते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं. As you all know, हमने क्लास में भी पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होता है. मानो मैंने कोई नंबर ले लिया 6. फैक्टर क्या होता है? इसको पार्ट्स में डिवाइड करना. लाइक हम 6 को किस वे में लिख सकते हैं? 2 into 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज 2 3 जा 6. सो ये 2 और 3 क्या है इसके फैक्टर्स हैं. क्लियर? सो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. क्लियर? दैट मीन्स जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर्स. I hope clear this point. Now the next number is prime numbers. And what is prime number? Prime numbers are those numbers having only 2 factors. 2 factors means one number is 1 and the second factor is itself the number. That means 1 or itself. 2 factors are there. Yeah? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा फैक्टर या वो खुद एक नंबर होगा. और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर्स. क्लियर? प्राइम फैक्टर्स दैट मीन्स कि जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स बनाएंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए. वहाँ पे वो कंडीशन आ जाती है प्राइम फैक्टर्स की. Is this clear? Now there are some points. The fundamental theorem of arithmetic say that composite number can be factorized as a product of primes. Composite number को हम प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक अगर हम कोई नंबर 6 ले रहे हैं. क्लियर? 6 ले रहे हैं हम. अगर हम उसके फैक्टर बनाने के आएंगे, दिस इज 2 into 3 फॉर्म. 2 is prime number and 3 is also a prime number. We can take another example like this is 12. Clear? 12 factors are 2 into 2 into 3 because 2 2s are 4, 4 3s are 12. Yes, these are the factors of 12. Now tell me student, can I write here 1 also? Tell me, think about it. Yes, we can write 1 also because 1 is factor of every number. Let us take another example. This is 24. So factorize this number on number 2, that is 12. Next on number 2, this is 6. On number 2, this is 3. On number 3, this is 1. See, 2, 2, 2, 3 and 1 is also there. Clear? So how we can write? 24 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 1. So these are the factors of 24. Now there is a one word, unique. Uniqueness is what? Uniqueness क्या होती है? अपने आप में कोई एक सिंगल चीज. That means यही होता है जो है एक सिंगल है, इससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता. That means अगर आप 12 के फैक्टर्स लिखोगे तो इनसे एक्स्ट्रा आप कोई और छोटे से छोटे फैक्टर आप डिफाइन नहीं. क्लियर? मीन्स प्राइम नंबर्स आपके इसी फॉर्म
केसेस आएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे एक वर्ड है यूनिक। क्लियर? नाउ अब तक हमने जो भी किया हम उसको समराइज करते हैं दोबारा से। क्लियर? सो हमने अब तक क्या पढ़ा था? नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या थे? काउंटिंग नंबर्स, जो आपके 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं। क्लियर? सेकेंड वन था होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स के साथ जब अगर आप 0 को इंक्लूड कर देते हो तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके होल नंबर्स। नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या थे? 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड देन नेगेटिव नंबर्स। जब ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं तो वहाँ पे बन जाते हैं आपके इंटीजर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। डन इंटीजर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b. Here the number in the form of a by b, where a and b are what? A and b are whole numbers. Clear? And b are natural. Clear? Now next topic is what? Rational numbers. Rational numbers can be written as p by q form, where p and q are integers and q is not equals to 0. These are the rational numbers. Clear? Now there are two numbers that are prime numbers and composite numbers. Clear? Prime numbers, the number having exactly two factors, means उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और itself, like 2. अब 2 को अगर लिखने में आओ तो 2 into 1 यही फॉर्म हो सकती है इसकी। आप चाहे इसको सॉल्व करके देखना, इससे अलग इससे कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं। सेम एज 3, 5, 7. क्लियर? दीज आर प्राइम नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट नंबर। Numbers having more than 2 factors, that means वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, लाइक 4 क्या, जब आप फैक्टर बना के देखोगे 2 into 2, एक और फैक्टर था यहाँ पे, क्या था आपका यहाँ पे 1. यस, तो दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स, 1, 2, 3. 4 के आपके कितने फैक्टर्स बन गए यहाँ पे? 3. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? फंडामेंटल थ्योरम। क्या? फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मीन्स हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एज आई टोल्ड यू कि यूनिकनेस क्या होती है कि जो आप प्रोडक्ट्स लिखोगे प्राइम नंबर्स के, वहाँ पे वो सिर्फ वही लिख सकते हो आप नंबर्स, उससे एक्स्ट्रा कोई और नंबर्स नहीं इंक्लूड हो सकते। क्लियर? सो दिस इज अवर टॉपिक